کہاں وہ شادی میں شامل ہوا تھا اور کہاں خود اس کی ہی شادی ہو گئی۔ شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سے تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا، کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کر کے آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے پاکستان لوٹتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور وہ اس بات پر ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر چینج کرنے واش روم چلا گیا۔ وہ دماغی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کر شاید اسے سکون ملتا۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ نیہان یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اتنی پریشانی میں سے نیند کیسے آ گئی تھی۔ دادو ٹھیک کہتی تھی، وہ نیند کے معاملے میں کمزور تھی، کسی بھی وقت کہیں بھی سو جاتی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور وہ اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے۔ چند دنوں کے آمنا سامنا ہونے سے وہ ہمیشہ ریزرو سا نظر آیا تھا۔ اوہ خدایا، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رکی تو ساتھ اس کا سانس بھی گویا رک گیا تھا۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور وہ اسے کیا کہتی۔ انہیں سوچوں میں باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وعلیکم السلام، گمبھیر لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ کرسی پر سامنے آن بیٹھا تھا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم کپڑے بدل لو اپنے۔ نیہان نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا۔ وہ بیٹھی رہی تھی۔ کس قدر آکورڈ سچویشن تھی یہ۔ دیکھو جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں امریکہ میں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آیا تھا شادی کی، اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تم جانتی ہو سب۔ ہم دونوں کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس اضافی ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا۔ کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ 1 قدم آگے آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ جب وہ بول رہا تھا تب وہ کیسے کہتی کہ میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا بہت بڑے، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی۔ ایسا ہی کچھ تھا۔ وہ اسے گڈ نائٹ بول کر کب کا منہ پھیرے سو چکا تھا۔ سوچ اور اندیشوں کا طوفان تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کچھ بھی زندگی میں اس کی مرضی جیسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سونے کے کچھ ہی دیر بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ نیہان نیند کی گہرائی میں نہ جانے کب اس کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ اس کے بدن۔ نیہان ایئرپورٹ سے باہر آیا تو یہ شہر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ اسے بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ کب 2 سال بیت گئے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ لوٹ رہا۔ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کیب کروا کے وہ گھر کی جانب گامزن ہوا۔ گاڑی جب حسن ہاؤس کے سامنے رکی تو وہ حیران ہوا۔ کافی گہما گہمی اور لائٹنگ کی ہوئی تھی۔ اس پر سب سے پہلے نظر تسنیم بیگم کی پڑی تھی، جو پہلے تو حیرانگی سے بت بن گئی اور پھر جھپٹ کر اسے گلے لگا لیا۔ تیمور، حسن، دادو اور باقی سبھی اسے دیکھ کر حیرانی اور خوشی سے دوچار تھے۔ مجھے بتا دیا ہوتا، میں گاڑی بھیج دیتا۔ تیمور حسن نے اسے گلے لگایا تھا۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا ڈیڈ، پر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اشارہ لائٹنگ کی طرف تھا۔ حوریہ کی مہندی ہے کل، دادو نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بتایا تھا۔ کون حوریہ؟ اے ہائے، تیرے چھوٹے چچا کی بیٹی۔ باہر جا کر سب کچھ بھول گیا؟ دادی نے اس کے سر پر چپت رسید کی تھی۔ نیہان واقعی بھول چکا تھا۔ یاد بھی کیسے رہتی؟ وہ یہاں ہوتا تب بھی وہ کم ہی سامنے آتی تھی، اور پھر کبھی فون پر بھی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ چھوڑو بیٹا، جاؤ فریش ہو جاؤ، سفر کی تھکن ہوگی۔ تسنیم بیگم نے اسے وہاں سے اٹھایا تھا۔ میں تمہارے کپڑے پریس کر کے بھجواتی ہوں۔ ماں کی بات سنتا وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واقعی کافی تھکن محسوس کر رہا تھا اور بستر پہ پڑتے ہی سو گیا۔ اس کی نیند کے خیال سے کسی نے بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا، اور 3 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر نیہان فریش ہو گیا تھا۔ نہا کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً سب اندر ہی تھے۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سب خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے گویا ہوا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم سناؤ، تھکن اتری؟ تسنیم بیگم نے بات کو گھمایا۔ ہاں میں اب فریش ہوں، وہ باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ 1 کپ کافی مل سکتی ہے؟ وہ ماں سے بولا تھا۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، کھانا کھائے بنا سو گئے؟ میں کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں مما، صرف 1 کپ کافی چاہیے بھی۔ وہ ماں کو منع کر گیا۔ تسنیم بیگم نے حوریہ کو آواز دی۔ السلام علیکم۔ وہ لاؤنج کے پاس ہی تھی، کہیں جو جن کی طرح حاضر ہوئی۔ سلام یقیناً نیہان کے لیے ہی تھا۔ وعلیکم السلام۔ نیہان نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ کل اس کی مہندی تھی۔ 1 کپ کافی بنا دو نیہان کے لیے۔ جی میں بنا کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے نیہان کچھ کہتا تسنیم بیگم نے اسے کافی بنانے بھیج دیا تھا۔ میں ان کی یہ فضول ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا۔ کون سی ڈیمانڈ پاپا؟ وہ بھی ان کی جانب متوجہ ہوا۔ یار شادی کی بات کر رہے تھے۔ گہرا سانس بھرا۔ تو کیا مسئلہ ہے بابا؟ نیہان نے باپ سے پوچھا۔ ارے بیٹا، بس جہاں حور کی شادی ہو رہی ہے لڑکے والے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا، دے دیں؟ اتنی پریشانی کس لیے ہے؟ بات گاڑی کی نہیں ہے نیہان، پہلے اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔
वो ना भी कहते तो मैं दे देता, मगर उन्होंने मेहंदी से एक दिन पहले गाड़ी मांगी है, जिसे मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले ही कहा था ये लोग मुझे कुछ जचे नहीं है। दादू भी आज पहली दफा बोल ही पड़े। कोई बात नहीं दादू, परेशान ना हो, एक गाड़ी की बात है, देने में क्या हर्ज है। नेहा ने दादी का हाथ हपका था। वैसे लड़का क्या करता है दादू, नौकरी करता है कहीं? दादू ने लब भींचे तो नेहान तैमूर हसन की तरफ देखने लगा। मुझे इतना इल्म नहीं, तुम्हारी माँ ने ही रिश्ता तय किया है, यकीनन कोई अच्छा काम करता होगा। उन्होंने कंधे उचकाते कहा। अरे बेटा, तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो? मैंने रिश्ता देखभाल कर ही किया है, इन सब बातों को छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, कैसे दिन गुजरे? तस्नीम बेगम ने बात ही बदल दी। हैदर, तुमने लड़के वालों से बच्चों के बारे में बात की? अभी नेहान कुछ कहता कि दादू ने तैमूर हसन को मुखातिब किया। नेहान ने हैरानगी से दादू को देखा। क्या मतलब, किसके बच्चे? लड़का पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं। दादू ने नेहान को गोया मजीद इत्तला बहम पहुंचाए। क्या मतलब है? नेहान मजीद हैरान हुआ था। 2 बच्चों का बाप है और हुरिया से शादी हो रही? हुरिया इस दौरान कॉफी लेकर लाउंज में दाखिल हुई थी। नेहान की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजरा था। वो कॉफी देकर जिस खामोशी से आई थी उसी खामोशी से वापस चली गई थी। नेहान गहरा सांस लेकर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ हो क्या रहा था, जबकि तस्नीम बेगम पहलू बदलती उठ के जा चुकी थी। तुमने उससे शादी से इनकार क्यों नहीं किया हुरिया? तुम इनकार कर देती तो किसी को जरूरत नहीं होती कि तुम पर जबरदस्ती कर सके। दादू हुरिया से सख्त लहजे में बात कर रही थी जब नेहान ने अपने कमरे से निकल रहा था। उनकी बातें सुनता वो वहीं थम गया। दादू, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। आज नहीं तो कल किसी न किसी से शादी तो करनी होगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। ऐसे घर के माहौल में तनाव पैदा होने से भला है कि मैं ताई की बात मान लूं। वो उनके घुटनों पर सर रखे बोल रही थी। मगर इतनी जल्दी तो नहीं थी, अभी सिर्फ 19 साल की हो, और तुमने कहा था तुम तालीम मुकम्मल करना चाहती हो। कोई बात नहीं दादू, मैं प्राइवेट तालीम हासिल कर लूंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। हुरिया की थकी हुई आवाज से नेहान को महसूस हुआ था वो शादी पर खुश नहीं थी, या फिर इतनी जल्दी शादी से खुश नहीं थी। वो नीचे आया तो माँ को टीवी देखता हुआ पाया। मम्मा, वैसे ये हुरिया की शादी इतनी जल्दी करने की भी क्या जरूरत थी? वो सरसरी से अंदाज में पूछ रहा था। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? उनके कान खड़े हुए। अरे नहीं मम्मा, वैसे ही यूरोप में काफी देर से शादियों का रवाज है, इसलिए बस जहन में आया। बेटा, वहां और यहाँ में बहुत फर्क है। वैसे भी हुरिया एक जिम्मेदारी है, जितना जल्द हो सके जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। उनकी बात से नेहान मुत्तफिक तो नहीं था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपने काम से काम रखने का आदी था। मगर हुरिया की बातों से उसे लगा था कि वो खुश नहीं थी। उसे अंदाजा था कि तैमूर हसन ने उसे पूछ कर ही रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर की होगी। कोई ज्यादा मसला होता वो लाजमी इनकार कर देती। न जाने क्यों नेहान बहुत गहरी संजीदगी से उसे सोचने लगा था। मेहंदी के फंक्शन शुरू था। नेहा ने पहली बार लड़के को देखा जो उम्र में काफी बड़ा था, और उसकी फैमिली की बातें भी अजीबोगरीब थी। नेहान को उस रिश्ते की समझ नहीं आ रही थी कि क्या सोचकर तय किया गया था। वो दादू के पास आ गया। दादू, ये रिश्ता तो समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। वो उनके पास बैठते हुए बोला था। तुम्हारी माँ की जिद थी, क्या कर सकते हम। ऊपर से हुरिया ने भी रजामंदी से हाँ कर दी तो मुझे भी खामोश होना पड़ा। वो भी जैसे भरी बैठी थी। नेहा ने दूर से स्टेज पर बैठी हुरिया को देखा था। कहाँ वो खूबसूरत छोटी सी छुई मुई सी अप्सरा, और कहाँ साथ बैठा उधेड़ उम्र आदमी। नेहान को कोफ से महसूस होने लगी, और हुरिया पर गुस्सा भी आने लगा था कि ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी थी जो उस इंसान से शादी करनी पड़ी। तय ये था कि मेहंदी वाले दिन ही निकाह की रस्म भी होगी, और फिर रुखसती अगले दिन। तैमूर हसन मेहमानों के पास थे। नेहान ने माँ को ढूंढने की कोशिश की। वो दुल्हे के खानदान के पास बैठी थी और शायद किसी बात पर बहस कर रही थी। नेहान ने उनके चेहरे से तनाव का अंदाजा लगाया था। अब तस्नीम बेगम साड़ी का पल्लू संभालती उठकर तैमूर हसन की तरफ बढ़ी और उन्हें कान में कुछ बोला और साइड की तरफ ले गई। नेहान भी उनके पीछे आया था। वो कह रहे हैं निकाह से पहले ही लड़की के लिए किसी अच्छी जगह घर लेके दें। माँ की आवाज नेहान के कानों में पड़ी थी। तैमूर हसन का तो गुस्से से खून खौल उठा। तुम ये रिश्ता कहाँ से ढूंढ कर लाई हो? निकाह का वक्त हो चुका है और अब ये नया शीशा छोड़ रहे हैं। तैमूर हसन गुस्से में बोले थे। मुझे क्या पता था कि ऐसे होंगे ये। वो भी सर झटकती धीरे से बोली। जब तुम्हें नहीं पता था तो ऐसा रिश्ता जोड़ने से पहले पता करना था कि वो कैसे लोग हैं। तैमूर हसन का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। एक काम करते हैं, आप अजमत भाई साहब का मकान जो हुरिया के नाम है अब वही लड़के के नाम पर कर दें। आखिर रहेगी तो हुरिया ही ना। माँ की बात सुनकर नेहान को यकीन नहीं आया था कि ये इस तरह की भी बात कर सकती है। अच्छा, और कल को वो कहें एक फैक्ट्री भी लगा दें या चचा की फैक्ट्री ही दे दें तो आप क्या करेंगे? वो जो छुपकर बातें सुन रहा था एकदम सामने आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो मेहमानों को देखो, हम मामला संभाल लेंगे। नेहान को माँ ने रोका तो वो सर नफी में झटकने लगा। मुझे नहीं लगता ये रिश्ता ठीक रहेगा हमारे खानदान के लिए बाबा। वो माँ की बात को नजरअंदाज करता बाप से बोला। पर बेटा, अब ऐन वक्त पर हम क्या बोल सकते? तैमूर हसन भी वाज़ेह तौर पर परेशान थे। उनके खानदान की इज्जत का सवाल था। बाबा, ऐसे रिश्ते बाद में गले का तौक बन जाते हैं। आप इनकार कर दें, साफ। मजीद किसी डिमांड को पूरा करने की जरूरत नहीं। वो फैसला कुन अंदाज में बोला। ऐसे नहीं होता नेहान, इतने मेहमान हैं, तमाशा लग जाना। तमाशा कोई नहीं लगेगा, बस आप साफ बता दें इनको। ऐसे घटिया सोच वाले लोग, ये जिनको खाकी इकदार का पता ही नहीं, इनसे रिश्ता ना ही हो तो अच्छा है।
तैमूर हसन ने गहरा सांस लिया था। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो, बस बहुत हो गया, मैं खुद बात करता हूँ उनसे। तैमूर हसन ने हाथ उठाते हुए सख्ती से टोका तो नेहान ने भी इत्तेफाक में सर हिलाया, जबकि तस्नीम बेगम होंठ भींच कर रह गई। और फिर वही हुआ, उनकी डिमांड से जैसे ही तैमूर हसन ने इनकार किया, वो निकाह से इनकार करके स्टेज पे उस वक्त अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई थी। अरे ये मेरे बेटे की शराफत थी जो यहाँ बारात ले आया, वरना बिन माँ बाप की बेटी को कौन पूछता है। वो औरत बुरी तरह फनकारी। मेहरबानी आपके इस एहसान की, मेरी बच्ची मुझ पे भारी नहीं, आप लोग जा सकते हैं। तैमूर हसन ने फिर भी अखलाक के दायरे में रहते कहा, जबकि लहजा इंतहाई सख्त था। हाँ हाँ जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं था बारात लाने का। ये तस्नीम बाजी ने मिन्नत समाजत ना की होती तो कभी न लाते बारात। न जाने कौन से ऐब हैं जिन्हें छुपाने के लिए मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गई। वो जहर उगल रही थी और तैमूर हसन ने सवाल की नजरों से हैरानी से बीवी को देखा, जो मुंह बनाते अपना रुख बदल गई। कोई ऐब नहीं है मेरी बेटी में, पाकीज़ा है वो, और आप मेहरबानी करके इज्जत से यहाँ से चली जाए। तैमूर हसन से मजीद बर्दाश्त न हुआ। हाँ हाँ जा रहे हैं, रखो अपनी बेटी अपने पास, अगर इतनी ही पाकीज़ा है तो अपने बेटे से ब्याह देते ना, हमारा वक्त क्यों बर्बाद किया। अब की बार वार बहुत सही जगह पर हुआ। तैमूर हसन ने एक नजर बेटे को देखा, जिसके निगाह सामने बैठी उस कमसल लड़की पे थी। आंखों में आंसू थे और सर झुका हुआ। ऐसा ही होगा। अचानक तैमूर हसन की बात पे सभी बुरी तरह चौंके। नेहान तो कुछ लम्हे बोल ही न पाया, लेकिन बाप के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। तैमूर, ये आप क्या कह रहे हैं? हुरिया और नेहान? तस्नीम बेगम हैरान हुई। क्यों, इसमें क्या बुराई है? वो माथे पे बल डाले बोले, और आप लोग अभी तक यहीं खड़े हैं? जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरे बेटे का निकाह हुरिया से होगा। तैमूर हसन कतई अंदाज में बोले कि दोबारा किसी को बोलने की जरूरत न हुई। हुरिया अजमत बिनते मोहम्मद अजमत हसन, आपका निकाह नेहान तैमूर वल तैमूर हसन से 10 लाख से कराजुल वक्त मुकर्रर किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? उसकी आंखें नम थी और जिस्म कपकपा रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई भेड़ बकरी हो, एक ने नापसंद किया, अब दूसरे के आगे डाल दिया हो। कबूल है। इनकार की गुंजाइश तो पहले भी न थी, अब भी वो इनकार न कर सकी। कबूलो इजाब के बाद सभी के हाथ दुआ के लिए बुलंद हुए तो तस्नीम बेगम ने नफरत से हुरिया को देखा, जिसे जान छुड़ाने की खातिर इतना सब किया, अब हमेशा के लिए उनके सामने रहेगी। तमाम मेहमानों को खाना सर्व कर दिया गया। अपने बेटे को अकेले खड़े देखा तो उसके पास चले आए। नाराज तो नहीं मुझसे? वो बेटे का हाथ हमें पूछने लगे। ऐसे क्यों सोचने लगे बाबा? वो अपने जहन से सब निकालता उनकी जाने मुड़ा। पता नहीं, डर लग रहा है तुम्हारे और हुरिया के साथ ज्यादती तो नहीं कर गया? बिना दोनों की राय लिए ये निकाह करवा दिया? वो दिल की बात जुबान पर ले आए। बाबा, अगर इतराज होता तो कबूल है ना कहता। वो मुस्कुरा के उनके दिल से पोंछ को सरका गया। हमेशा खुश रहो बेटा, मुझे पूरा यकीन है हुरिया तुम्हारे लिए एक बेहतरीन हमसफर साबित होगी। बहुत साबिर और नेक बच्ची है। अल्लाह तुम दोनों के नेक नसीब करे, आमीन। वो उन्हें दुआ दे रहे थे और वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके बाबा मुतमईन और आसूदा थे। रात के 2:30 बजे जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सो चुकी थी। यकीनन वो थकन से इस कदर निढाल थी कि उसे नेहान के आने का पता तक नहीं चला था। आज उनकी शादी की पहली रात थी, मगर ये शादी आम शादियों जैसी हरगिज नहीं थी। नेहान के लिए ये एक भारी रात थी। कहाँ वो शादी में शामिल हुआ था और कहाँ खुद उसकी ही शादी हो गई। शादी भी उस लड़की से जिससे उसका रस्मी से ताल्लुक था। रस्मी भी क्या, कहीं आमना सामना हो जाए तो वो सलाम कर देता और वो वालेकुम अस्सलाम करके आगे निकल जाती। अमेरिका से पाकिस्तान लौटते उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, मगर जो होना था हो चुका और वो इस बात पर हरगिज खुश नहीं था। कुछ देर उसे घूरने के बाद वो गहरा सांस लेकर चेंज करने वॉशरूम चला गया था। वो दिमागी तौर पर इस कदर थका हुआ था कि गर्म पानी का शावर लेकर शायद उसे सुकून मिलता। बाथरूम में पानी गिरने की मुसलसल आवाज ने उसे जगा दिया था। नेहान यकीनन आ चुका था और वो सोई पड़ी थी। वो हड़बड़ा के उठ बैठी थी। पता नहीं इतनी परेशानी में उसे नींद कैसे आ गई थी। दादू ठीक कहती थी, वो नींद के मामले में कमजोर थी, किसी भी वक्त कहीं भी सो जाती थी। वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी, मगर इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। एक ऐसा इंसान जो चंद दिन पहले ही अमेरिका से आया था और वो उसे जानती तक नहीं थी कि वो कैसा है। चंद दिनों के आमना सामना होने से वो हमेशा रिजर्व सा नजर आया था। ओ खुदाया, वो गहरा सांस लेकर रह गई थी। पानी गिरने की आवाज रुकी तो साथ उसका सांस भी गोया रुक गया था। अब यकीनन वो बाहर आता और वो उससे क्या कहती। उन्हीं सोचों में बाथरूम का दरवाजा खोलकर वो कमरे में आया और उसे जागता देखकर चौंका। अस्सलाम वालेकुम, वो इतना ही कह सकी। वालेकुम अस्सलाम, गंभीर लहजे में जवाब देता हुआ वो कुर्सी पर सामने आन बैठा था और उनके दरमियान गहरी खामोशी थी। तुम कपड़े बदल लो अपने। नेहान ने खामोशी तोड़ी। जी अच्छा। वो बैठी रही थी। किस कदर ऑकवर्ड सिचुएशन थी ये। देखो जो कुछ हुआ वो हो गया। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ ना हो, मगर मैं अमेरिका में किसी से कमिटमेंट करके आया था शादी की, और यहाँ जो कुछ हुआ वो तुम जानती हो सब। हम दोनों के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैं चाहता हूं तुम ये बात कबूल कर लो कि तुम मेरे लिए बस इजाफी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानता हूं। तुम्हारी जरूरतों का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा, मगर इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो बोलता जा रहा था और वो पत्थर की मूरत बनी सुन रही थी। वो जानती थी ऐसा ही होना था। वो उसे इल्जाम नहीं दे सकती थी, न शिकवा कर सकती थी। मुश्किल वक्त में वो उसके लिए ढाल बना था। कोई ऐसा नहीं कर सकता था। जब सब 2 कदम पीछे हट चुके थे तब वो 1 कदम आगे आकर उसका हाथ थाम चुका था। मगर फिर भी वो एक लड़की थी और उसके ख्वाब भी थे। वो जब बोल रहा था तब वो कैसे से कहती, मेरे ख्वाबों का क्या?
वो कुर्बानी दे चुका था, बहुत बड़ी, और अब शायद उसके लिए सारी जिंदगी वो कुर्बानी देती रहेगी। ऐसा ही कुछ था। वो उसे गुड नाइट बोलकर कब का मुंह फेरे सो चुका था। सोचो न, देशों का तूफान था जो उसे परेशान कर रहा था। कुछ भी जिंदगी में उसकी मर्जी जैसा नहीं हुआ था कभी। अब उसके सोने की कुछ ही देर बाद वहीं बैठे बैठे सो गई। निहान नींद की गहराई में कब न जाने उसके इतना करीब आ गया था कि उसके बदन की खुशबू ने उसे जगा दिया। आंखों में फैला हुआ काजल चेहरे पर उतर चुका था। यकीनन वो रोते हुए सोई थी। मेकअप खराब हो चुका था, मगर उसे मानना पड़ा वो खूबसूरत थी। नींद की बारिश में भीगती हुई लड़की, कांधे से ढलका हुआ भारा शादी का लिबास और दावत नजारा देता हुआ हसीन वादियों सा उजलापन। वो बेख्तियार निगाहों की जावियों में बहने लगा तो उसने नजरें चुरा ली। शायद रोते रोते सो जाने वाली हर लड़की ही खूबसूरत होती है। उसे समझ नहीं आया था। वो कुछ नहीं कर सकता था। मोहब्बत कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इरादे से कर ली जाए। वो यहाँ कुछ दिनों के लिए लौटा था और एक ऐसे रिश्ते में फंस चुका था जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। गलती उसकी अपनी थी। ना वो इस मसले में टांग अड़ाता, ना ऐसा कुछ होता, मगर वो अपनी फितरत से मजबूर था। वो जिस माहौल से आया था वहां ज्यादती पर चुप रहना नहीं सिखाया जाता था। निहान तैमूर, अब क्या करोगे? उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए उसने खुद से सवाल किया था। उसके पहलू में सोई हुई लड़की अब उसकी बीवी थी। कुछ दिन में उसकी वापसी फ्लाइट थी। वो गहरा सांस लेकर रह गया था। उसे अफसोस अच्छा नहीं था, मगर वो बिहेवियर हुआ कि शायद उसके क्या करता। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो खुद शॉक्ड था, और ऐसे में वो ऐसा ही रद्देमल दे सकता था। अचानक उसने करवट बदली थी और उसका बाजू अपने सर के नीचे कर दिया। निहान ने एक नजर उसे देखा। उसे सिगरेट की तलब हो रही थी, मगर वो उसके बाजू से लिपट चुकी थी। वो चाहते हुए भी बाजू नहीं छुड़ा पाया था, और उसे यूं ही तकते वो भी आंखें मीच गया। सुबह आंख खुलने पर उसे पता चला था कि वो निहान के बाजू से लिपटी हुई है। एकदम बिदक कर पीछे को हटी थी। नींद पता नहीं उसे कैसे आई थी। वो शुरू से दादू के साथ सोती थी, उनकी बाजू से लिपट कर। उसकी आदत थी। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। वो उसी उधेड़पन में थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने निहान को भी जगा दिया था। उठ जाओ, नाश्ते की मेज पर थोड़ी देर में सब पहुंच जाएंगे। बाहर से तस्नीम बेगम की आवाज सुनाई दी। निहान ने एक नजर उसे देखा और फिर खामोशी से बाथरूम में घुस गया। 5 मिनट बाद वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। वो उसके कमरे से बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। सॉरी, रात में कुछ ज्यादा बुरी तरह पेश आया था। वो सोचों से चौंकी थी। इट्स ओके, वो इतना ही कह सकी। तैयार हो जाए, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। खिलाफे तवक्को निहान काफी नरमी से बात कर रहा था। मैं यहाँ ही नाश्ता कर लूंगी। वो बाहर सबका सामना करने से वाज़ेह तौर पर कतरा रही थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। ओके, एज यू विश। वो कमरे से बाहर निकल गया था। वो कमरे में अकेली रह गई थी, अपनी सोचों और कल की शर्मिंदगी के साथ। पता नहीं वो कैसे सबका सामना करेगी। वो जानती थी वो यहाँ मिसफिट थे। निहान अपने कॉल में फंस गया था। उसकी मम्मा उसे रिश्ते पर राजी नहीं थी जो लम्हों में बन गया था। ऐसे में वो किसी से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकती थी। वो गहरा सांस भरती खुद को वक्त के धारे पे छोड़ती उठ के चेंज करने लगी। हुरिया किधर है? वो नाश्ते की मेज पर बैठा ही था कि दादू ने पूछा। वो अपने कमरे में नाश्ता करेगी। कमरे में क्यों करेगी? निहान ने कहा तो दादू ने उसे घूरा और मुलाजमों को आवाज दी। जाओ हुरिया को बुलाओ। नाश्ता सारा खानदान एक साथ मिलकर करता है और अब वो खानदान का हिस्सा है। दादू ने गालिबन तस्नीम बेगम को सुनाने के लिए कहा था, जो कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गई थी। आओ बेटी, निहान के साथ बैठो। हुरिया जो कि दादू के साथ बैठने लगी थी, वो एक लम्हे को परेशान हुई थी। निहान ने कोई रद्देअमल नहीं दिया था। अलबत्ता तस्नीम बेगम के चेहरे पर कई रंग एक साथ आकर गुजरे थे। हुरिया न चाहते हुए भी निहान के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। तैमूर हसन के आते ही नाश्ता लगा दिया गया था। तो फिर क्या इरादा है निहान? आज रात वलीमा के बाद फिर हनीमून का प्लान कर लो। दादू ने नाश्ता करते हुए बहुत लगावट से कहा। निहान के हाथ रुके थे और हुरिया को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बोले। अभी कुछ प्लान नहीं किया, मेरी कुछ मसरूफियात है। निहान ने सरसरी से जवाब दिया। क्या मतलब प्लान नहीं? हुरिया मेरे मरहूम बेटे की निशानी है। मैं नहीं चाहती इसकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रहे। निहान ठीक कह रहा है, इसको कुछ काम होंगे। इस बार तस्नीम ने भी चुप नहीं रहा गया था। निहान, मैं क्या बोल रही हूँ? दादू ने तस्नीम की बात नजरअंदाज की थी। निहान ने एक नजर हुरिया को देखा। जहां ये कहेगी चले जाएंगे दादू। वो उस पर डाल गया। हुरिया तो एकदम बुखला गए। बोलो हुर। दादू अब उसे मुखातिब थे। उनका बस नहीं चल रहा था फटाफट उसे भी हनीमून पे भेज दें, और हुरिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। कुछ दिन में चले जाएंगे अम्मा, इतनी में क्या जल्दी है? आज वलीमा कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तैमूर हसन ने पहली बार जुबान खोली थी। हुरिया ने शुक्र अदा किया था। वैसे भी तैमूर हसन बहुत सुलझे हुए नर्म तबीयत के इंसान थे। हुरिया को वैसे भी वो अपनी बेटी जैसा प्यार करते थे। जब इतना कुछ हुआ था तब तैमूर हसन ही थे जिन्होंने उसे कबूल करने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया था। माँ और फिर बाप के गुजर जाने के बाद एक वही थे जो उसका हर तरह का ख्याल रखते थे। दादू ने सर हिलाया। चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी। निहान, तुम फ्री होकर ऑफिस चक्कर लगाना। एक बंगले के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है वैसे भी, तो मैं चाहता हूँ जब तक तुम यहाँ हो कुछ मामला देख लो। तैमूर हसन ने नाश्ता खत्म करते हुए निहान को मुखातिब किया था। मैं आ जाऊंगा डैड, फिक्र ना करें। निहान ने जवाब दिया तो तैमूर हसन ने उठते हुए उसके कंधे पर थपकी दी और बाहर निकल गए। उन्हें आज वलीमे के लिए भी सारे इंतजाम देखने थे, जबकि निहान से पहले ही हुरिया भी नाश्ते की मेज से उठ चुकी थी। वलीमे की सादा सी तकरीब के बाद वो लोग घर आ गए थे, जबकि निहान अपने किसी दोस्त की तरफ चला गया था।
शाम में हल्की हल्की बारिश में शहर भीगने लगा था। उफ, ये लाहौर शहर और बारिश। हुरिया बारिश और लाहौर दोनों की दीवानी। जो कुछ हो रहा था उसके बाद ये मौसम उसके लिए बहुत राहत था। निहान के कमरे के अकब में एक छोटा सा गार्डन और झूला उसने पहली बार देखा। वो झूले पर बैठी बारिश में भीगने लगी थी। इस बात से बेखबर कि निहान अभी अभी बाहर से आया था और बेख्तियार उसे बारिश में भीगते देखे चला जा रहा था। लिबास उसके सहरंगेज बदन पर बोसा दे रहा था और जुल्फें भीग कर उसके सुराहीदार गर्दन को चूम रही थी। दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। निहान को मानना पड़ा, वो लड़की वाकई बेहद खूबसूरत थी। वो कल से उसी शशुपंज में गिरफ्तार था कि उस रिश्ते को कैसे साथ लेकर चले। वो उन मर्दों में से भी नहीं था कि औरत को उस जुर्म की सजा दे जिसमें उसका कसूर न था। नर्म दिली उसे तैमूर साहब से जीन से मिली थी। वो कुछ ऐसा चाहता था जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, जबकि वो ये भी महसूस कर चुका था कि उसकी माँ का रवैया हुरिया के साथ अच्छा नहीं था और वो जानता था उनकी जिद बहुत बुरी थी। तैमूर हसन, निहान और फिर दादो की वजह से वो खामोश थी, मगर ये खामोशी फतूफान से पहले की थी। उसे उनसे कुछ अच्छी उम्मीद न थी। हूर, जब वो कमरे में दाखिल हुई तो निहान पहले से ही बेड पर नींद दराज था। वो भी अभी लौटा था। वलीमे के बाद ही वो दिन को निकल गया था और अब रात गई वो लौटा। वो आज का सारा वक्त पुराने दोस्तों के साथ गुजार कर आया था। क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? उसकी मैनिखज निगाहों से बचने के लिए वो फौरन बोली। वो दादू ने बोला कि पूछ लूं आपसे। कंफ्यूज सी बोलती वो निहान को छोटी सी बच्ची लगी। दादू ना बोलती तो ना पूछती। निहान ने मोबाइल से निगाहें हटाकर उसे देखा। नहीं, मतलब पूछती मैं। तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो? माना कि मैंने न चाहते हुए तुमसे शादी की और तुमसे पूछा नहीं गया, मगर मैं अब इतना भी कोई खूनख्वार इंसान नहीं कि तुम बकरी की तरह सहमी रहो मुझसे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। वो फौरन ही बोल पड़ी। क्या मैं जाऊं? वो इजाजत तलब नजरों से देखते बोली। कहाँ जाऊं? मतलब कमरे से बाहर? आपने कुछ खाना तो नहीं? निहान हंस दिया। वो हैरानगी से उसे देखने लगी थी। ऐसा करो, 2 कप कॉफी बना लाओ। 2 कप क्यों? आप तो एक ही हैं। हाय रे उसकी मासूमियत। अब हम 2 हैं, 2 बना लाओ। जी अच्छा। वो मजीद कोई सवाल किए बिना कमरे से भाग गई थी। निहान के लिए उसका डर अजीब था। वो जहां से आया था वहां लड़कियां बहादुर और मॉडर्न थी। ऐसे डरी सहमी नहीं रहती थी। पता नहीं इसका क्या मसला है। वो हुरिया के बारे में सोचने लगा। वो जल्दी ही कॉफी बना के ले आई थी। उसे कप पकड़ाकर वो बेड की दूसरी तरफ बैठ चुकी थी। सो क्या सोचा तुमने? आगे क्या करना है? वो अब उसे नॉर्मली बात कर रहा था। क्या करना है? वो हैरान हुई थी। अरे मतलब जिंदगी में आगे क्या इरादा है? मेरा तो कोई इरादा नहीं है, वो झट से बोली। तो निहान ने हैरानगी से उसे देखा। जो कुछ नहीं सोच रही थी या शायद उसे बताना नहीं चाहती थी। निहान का दिल क्या उससे तंग करे, सो संजीदगी से उसे देखते हुए बोला। अच्छा, बच्चों के बारे में क्या प्लान है? कौन से बच्चे? वो परेशानी से उसे देखने लगी थी। अब जबकि हमारी शादी हो चुकी है तो अनकरीब सब किसी खुशखबरी के बारे में पूछेंगे। निहान ने संजीदगी चेहरे पे जमाए रखी थी। अस्तगफिरुल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? उसका रंग लाल हो गया था। निहान ने बमुश्किल हंसी रोकी थी। तो ये बातें मैं किसके साथ करूं? उसका चेहरा मजीद लाल हुआ था निहान की बात सुनकर। चलो सोच कर बता देना, निहान ने मोबाइल उठाते हुए कहा था। वो सुर्ख चेहरा लिए कप उठाकर बाहर भागी थी तो उसके इस अंदाज पे निहान मुस्कुराता रह गया था। हुरिया गाल के नीचे हाथ रखे ख्वाबों की मुसाफिर बनी हुई थी। खुली जुल्फों की शरीर सी एकलिट उसके लबों पे बेपरवाही से बोसा दे रही थी। निहान तैमूर, जिसकी आंख नींद से खुली थी, उसे बेखबर अपनी तरफ सोता देख मबहूत हो गया था। उसकी निगाहें फिसलती हुई बूंद की तरह उसके होंठों से गर्दन और फिर नीचे की तरफ सफर करने लगी तो उसने खुद को टोका। उसने अपनी निगाहों को काबू में रखते हुए हाथ बढ़ाकर उसके लबों पर शरारत करती बालों की क्लिट को हटाया था और एन उसी वक्त हुरिया की आंख खुली थी और उसने एक जोरदार चीख मारी थी। निहान बिदक कर पीछे हटा था, मगर हुरिया इस कदर घबरा गई थी, उसकी चीखें नॉन स्टॉप रेल की तरह भागने लगी तो मजबूरन निहान को उसके मुंह पर हाथ रखना पड़ा। क्या तुम पागल हो गई हो? निहान गड़बड़ा गया था। सब सोए हुए होंगे, तुम ऐसे चिल्ला रही हो जैसे पता नहीं कौन सी आफत तुम्हारे सर पर आन गिरी है। वो खफासा बोला। आप क्या करने की कोशिश कर रही थी मेरे साथ? हुरिया जरा होश में आई तो झट से उसका हाथ लबों से परे करते हुए बोली। मैं कुछ नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे। क्या कर रहा था? निहान ने उसकी आंखों में झांका जो कच्ची नींद से बेदारी की वजह से हल्की सी गुलाबी हो रही थी। या खुदा, ये आंखें। वो खुद को टोक गया था। आप मेरे साथ? वो कुछ कहते कहते रुक से गई थी। हाँ बोलो, क्या मैं तुम्हारे साथ? वो मजीद गंभीर लहजे में पूछ रहा था। परे हटे आप और उधर दूर होकर जरा सोया करें प्लीज। वैसे तुम्हारी तला के लिए अर्ज है कि मैं नहीं, तुम इन तरफ आई हो। जी नहीं, वो तंग कर बोली थी और फिर उसकी तरफ मुड़े जो धीमा धीमा सा मुस्कुरा रहा था। आप किस हक से ऐसा कर रहे थे मेरे साथ? वो रवानी में बोलते फिर चुप कर गई थी। उसे इज़्ज़वाजी हकूक कहा जाता है। जी नहीं, वो फिर रवानी में बोली। जी हाँ, वो उसके इंकार पर इकरार करवा रहा था। क्या मसला है आपका? वो नींद से डूल रही थी। मसला ये है, तुम खराटे बहुत लेती हो मैडम, और ऐसा लगता है जैसे रेल का इंजन कमरे में घुस गया हो। अब की बार वो नई बात छेड़ गया। क्या सच्ची मुच्ची? उसकी बड़ी सी आंखें हैरानगी से फैल गई थी। उफ निहान, ये लड़की मजाक भी नहीं समझती। निहान ने आप भरी तो हुरिया शर्मिंदा सी हुई। वो वाकई बहुत बेवकूफ थी। सो जाए आप। वो जरा दूर होकर लेट गई थी और उसे देखने लगी थी। तुम मुझे घूरना बंद करोगी? निहान ने आंखें बंद